लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट द ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी जो है इट इज नथिंग बट इट्स आल्सो कॉल्ड इट्स माउथ। और आपने हेड के, अगर आप हेड को देखें स्ट्रक्चरली, तो हेड में नीचे का जो पोर्शन होता है, लोअर पार्ट ऑफ योर हेड, वहाँ पे प्रेजेंट होती है एक स्पेस दैट इज कॉल्ड एज माउथ और ओरल कैविटी। एंड ऑफ कोर्स इसका जो मेन काम है, इट इज एन एंट्रेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट अगर एक परफेक्ट एनाटॉमी पूछेंगे कि स्ट्रक्चरली वेयर इट इज प्रेजेंट, so it is present anterior on the face under the nasal cavity. अभी हमने नोज पढ़ा था, तो below the nasal cavity is a oral cavity and it is bounded by a roof. ऊपर की तरफ जो होता है that is the roof. Then we have a floor नीचे and the two lateral walls that forms the cheeks. इसके अंदर जो होता है दो चार चीजें पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन एज वेल एज स्पीच। सो व्हाट ऑल स्ट्रक्चर्स responsible for mastication and speech are present there. That is the teeth, tongue, and associated salivary glands, and of course some facial muscles externally and not internally, but externally they are present. Anteriorly, it is of course सामने की तरफ खुलता है through oral fissure, and posteriorly it communicates with the oropharynx. Pharynx का oral part, oropharynx, through a passage that is called as oropharyngeal isthmus. Coming to the bony framework, so a number of bone forms the oral cavity. So there are three paired bones, that is the maxilla, that forms the roof palatine, again the roof part. Then we have temporal bone laterally, and unpaired में आ जाए तो mandible bone आप देख सकते हैं। तो mandible bone आपको पता ही है, ठीक है, mandible, sphenoid bone posteriorly, and hyoid bone inferiorly or at the floor. So these are few of the bones that forms the oral cavity. Coming to its function, so it has three functions, or functionally divided into three regions. That is digestive part होता है, इसका function है. It receives the food, of course, then chew it with the help of teeth, and then with the help of salivary glands थोड़ा बहुत जो digestion होता है, lubrication होता है, and then the bolus or the food is taken to the stomach or the large intestine. Next is communication. It modifies sound produced into the larynx. जो भी आप बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से भी बोल सकते हैं, but with the help of mouth you cannot speak just from the nose. Nose में सिर्फ resonance production होता है. So communication जो mainly larynx में हो रहा था, that is delivered out with the help of mouth. Next होता है breathing. At times, usually nose is of course an entrance to the respiratory tract, but apart from nasal cavity, sometimes or mostly oral cavity also acts as an inlet to the respiratory tract. But it is not a good or healthy breathing if it is doing with the help of mouth. जो इंसान मुंह से सांस लेता है, that is not healthy. Why it is not healthy? Because in case of nasal cavity, there is external hairs over there. ठीक है, nasal hairs से वहाँ पे जो foreign particle को रोक रहे थे, और आपके वहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोजा थी जो ट्रैप कर रही थी पार्टिकल्स को, बट व्हेनेवर वी आर इनहेलिंग विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों में ऐसा होता है, अगर बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो चांसेस ऑफ फेरेंजाइटिस इंक्रीजेस बिकॉज इन्फेक्शन, स्मॉल पार्टिकल्स, they don't get filter here in the mouth and thus causes infection or inflammation in the pharynx, जो पीछे का रीजन है नेक एरिया का. ओके, कमिंग बैक टू द ओरल कैविटी. सो ओरल कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट एंड ओरल कैविटी प्रॉपर. जैसे मैं नोज को भी डिवाइड किया था वेस्टिब्यूल में, अपर पार्ट जो था, ऐसे ही हम वेस्टिब्यूल, वी आल्सो से वेस्टिब्यूल इन ओरल कैविटी. वी हैव अ वेस्टिब्यूल एंड वी हैव अ ओरल कैविटी प्रॉपर. What is vestibule? Vestibule is a horseshoe shape. आपने देखा होगा horseshoe shape is somewhat U-shaped structure. So of course it is a U-shaped structure. It's horseshoe shape and of course it is present anteriorly. And किसके बीच में पाया जाता है? Between the teeth, जो दांत है या gums बोल दीजिए, between teeth or gums and the lips or the cheeks. Anteriorly cheeks and lips, anteriorly lips होंगे and laterally cheeks होंगे. So, जो area दांतों के आगे in front of lips और चीक्स के सामने होता है, उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल. कमिंग टू ओरल कैविटी प्रॉपर, अगर आप मुंह बंद करें तो जो भी एरिया आपके टीथ के पीछे का प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी प्रॉपर. तो ओरल कैविटी प्रॉपर जो होता है, इसमें तीन चार चीजें पाई जाती हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा. इट हैज अ रूफ, ऊपर रूफ है, नीचे फ्लोर है, एंड देन वी हैव
टू लेटरल चीक्स। जो चीक्स होता है वहाँ जो होता है वो किससे बनता है, मेनली आउटसाइड अगर देखें तो इट इज फॉर्म बाय द बक्सिनेटर मसल। एक मसल है दैट इज फाउंड ऑन द चीक्स, और चीक मसल भी बोलते हैं किसे, बक्सिनेटर को। सो बक्सिनेटर इज अ मसल दैट इज फाउंड मेजरली ऑन द चीक। एंड ऑफ कोर्स इंटरनली देखेंगे तो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, बाहर से मसल होगी, and it is innervated by facial nerve. So buccinator is supplied by branch of facial nerve. Coming to the roof of the oral cavity, ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं रूफ पे। तो रूफ अगेन हम पढ़ चुके हैं, रूफ इज फॉर्म बाय द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंटीरियर में होता है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर में होता है। हार्ड पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट बिकॉज ऑफ द involvement of the bones. What are those two bones? The maxilla and the palatine. And of course it separates the oral cavity with the nasal cavity. इसी के ऊपर चले जाएंगे तो nasal cavity है, सी के नीचे आ गए तो आपकी oral cavity है। Hard palate is of course lying at TV and is formed by the maxilla and the palatine bone. Because of bony structure, it is called as hard palate. Coming to the soft palate is formed by the muscles, that is, it is soft and it's a muscular structure, that is the continuation, posterior continuation of the hard palate. Hard palate जहाँ पे खत्म होता है वहीं से कंटिन्यू करता है as a soft palate, as a soft muscular structure called as soft palate. इसके एक स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड दैट इज इट एक्ट्स एज अ वॉल that can lower to close the oropharyngeal isthmus and elevate to separate the nasopharynx from the oropharynx. जैसे ही सॉफ्ट पैलेट नीचे की तरफ आएगा तो यह आपके मुंह को, आपकी ओरल कैविटी प्रॉपर को बंद कर देगा, so that whatever is taken from the oral nasal cavity, that is the air part, जो है वो नीचे चली जाए। तो उसमें जब आप अपना मुंह बंद रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो ये सॉफ्ट पैलेट है दैट इज लोवर्ड, वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब आप एलिवेट करेंगे किसको, अपने सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इट सेपरेट, ये एक दीवार बना देता है, एक ब्रिज बना देता है किसके बीच में, नेसोफेरिंक्स के बीच में और ओरोफेरिंक्स के बीच में। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन व्हाइल स्वेलोइंग। जब भी आप खाना चबा रहे होते हैं आपका सॉफ्ट पैलेट नीचे होता है, सो दैट योर ओरोफेरिंक्स इज क्लोज। लेकिन जब आप खाना निगल रहे होते हैं, स्वॉलो कर रहे होते हैं, यू आर टेकिंग योर फूड टू द स्टमक, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस इज एलिवेटेड, सो यू वोंट रेस्पायर। इस चीज को आप फील कीजिएगा, कभी जब भी आप खाना निगल रहे होंगे आप कभी भी ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी रेस्पिरेशन आपको फॉर अ टाइम भी बंद होता है। नीदर यू आर इनहेलिंग नॉर यू आर एक्सेलिंग, एंड द रीजन इज द सॉफ्ट पैलेट हैज सेपरेटेड and formed a bridge or a door-like structure between the nasopharynx and the oropharynx. Coming to the floor of the oral cavity, floor अगर आप floor पे आ जाएं बिल्कुल, so you'll find two muscles that are called as muscular diaphragm of the oral cavity. That is the mylohyoid muscle, that is the major muscle that is forming this one, and we have one other muscle that is genioid muscle. ठीक है, these are superior meatal and inferior meatal होते हैं आपके mandible में, ठीक है, वहीं से अटैचमेंट होता है इनका, एंड देन इंसर्ट हो जाता है आगे ये हायोइड बोन पे। बोथ मसल्स आर इंसर्टेड ऑन हायोइड बोन। तो मस्कुलर डायफ्राम जो है दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, एंड ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी यही प्रोवाइड करता है नीचे की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका टंग। टंग जो है वो ऐसा फ्लोर नहीं मानते क्योंकि उसको टंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, बट इट इज कनेक्टेड टू दिस रीजन बाय अ फ्रेनुलम। सबको पता होगा एक फ्रेनुलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूकस, ओरल म्यूकोसा that attaches the floor of the tongue, that attaches the base of the tongue with the floor of the oral cavity. जो टंग का बेस होता है वो फ्लोर, ओरल कैविटी के फ्लोर से कनेक्टेड होता है वाया फ्रेनुलम। In most people, not people, in most kids, जो छोटे बच्चे होते हैं, you'll find कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो मोस्टली उनके साथ ये होता है कि उनका फ्रेनुलम जो है वो नॉट जस्ट एट द बेस, कंप्लीट आपके टंग को, हम टंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपके कंप्लीट टंग से अटैच होता है, सो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ किड, नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल फॉर द किड टू रेज अप द टंग। और हमें पता है हम काफ़ी चीज़ें जो है वो जब बात करते हैं तो हमारी टंग एलिवेट करती है, उठती है, जब वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगी फ्रेनुलम की जगह, तो द पर्सन इज नॉट एबल टू टॉक, एंड दस
उसके लिए एक माइनर सी सर्जरी की जाती है, नथिंग, कुछ यहाँ से काटा जाता है एंड देन हम उसे स्टिच अप कर देते हैं. So that we'll study in, again later we'll study. So which is tongue. So tongue is not the part of the floor. The base of the tongue is connected to the floor by a frenulum. And frenulum is nothing but it is a fold of oral mucosa. And then we have salivary glands and ducts at the floor. That is, you can see the submandibular gland and the parotid gland. Okay. Coming to the nerve supply of the oral cavity, अगर nerve supply की बात करें, so there are two type of supplies, nerve supply and sensory supply and motor supply. Sensory supply takes the information to the brain, while motor supply gets the information from brain to the periphery or the oral cavity. So आपको ठंडा लग रहा है, ग्रेट. अभी हम ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. आपको कोई भी चीज से आप अपने हार्ड पैलेट को काटेंगे, लाइक कुछ भी करेंगे, so that information is taken to the brain via trigeminal nerve or the branches of the trigeminal. तो जो रूफ है वहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन एंड मेसोपैलेटाइन ब्रांच होती है मैक्सिलरी नर्व की, जो आपके ब्रेन में लेके जाएगी. फ्लोर एंड चीक्स में mandibular nerve की branches होती हैं, that is the lingual branch and the buccal branch that supplies the floor and the cheek of the oral cavity. Coming to the motor supply is like information लेके आ रही है. अब here in this case रूफ पे information गर्म है, ठंडा है, या जो भी आपको फील आ रही है, वो information सिर्फ जा सकती है, वहाँ पे वापस आने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है. there is no motor supply to these areas. कोई ज़रूरत नहीं है. हार्ड पैलेट को आप कुछ कर नहीं सकते, जो फ्लोर है उसका आप कुछ कर नहीं सकते. सेम इज द केस विद द चीक, आप कुछ कर नहीं सकते. जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ लेके जाई जा सकती है. इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी दैट विल बी टू द चीक मसल और अ लिप मसल. तो चीक में आती है एक आपकी मेन मसल दैट इज बक्सिनेटर, और लिप में आपकी एक मसल पाई जाती है दैट इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. So these two muscles are, as हम पढ़ चुके हैं, supplied by the facial nerve. So all any motor supply to the cheek muscle or a lip muscle, that is orbicularis oris, is done via facial nerve. आज के लिए बस थोड़ा सा मैं लूंगी. इंशाल्लाह tomorrow we'll start with the major portion, that is the lips and the gum part. थोड़ा सा मैं स्पीड अब बढ़ाऊंगी and I won't go much deeper. ठीक है, जितना एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है मैं अब लूँगी. और अब जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे दैट विल बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे. ठीक है, तो